Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 15 study note number 2.2, that is transfer pricing. So today we will solve illustration number 50. Division A is a profit center which produces three products, that is X, Y and Z. Each product has an external market. Okay, so in division A there are three products, okay, that is X, Y and Z. External market price per unit यानी कि selling price. Okay, external market price is nothing but the selling price. This is per unit. Variable cost of production in division A, this is also per unit. Labor are required per unit in division A. Okay, so to produce 1 unit of X we will require 3 labor hours. To produce 1 unit of Y we will require 4 labor hours. So to produce 1 unit of Z we will require 2 labor hours, right? ठीक है. Product Y can be transferred to division B. Okay, so this product Y can be transferred to division B. Okay, अभी ये जो X Y Z प्रोडक्ट है वो हम लोग डायरेक्टली ए डिवीजन में प्रोड्यूस करके उसको डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हैं. सी ईच प्रोडक्ट हैज़ एक्सटर्नल मार्केट, सो डायरेक्टली मार्केट में सेल तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट Y है वो हम लोग डिवीजन बी में भी सेंड कर सकते हैं क्योंकि डिवीजन बी का वो रिक्वायरमेंट हो सकता है. ओके, सो वी कैन सेल ईच एंड एवरी प्रोडक्ट दैट इज एक्स वाई जेड इन द एक्सटर्नल मार्केट, इन द मार्केट, बट this product Y we can transfer to division B. Okay, it may be a requirement of division B, so we can sell the product XYZ in the external market and we can transfer product Y to the division B. This sentence is saying that, but the maximum quantity that might be required for transfer is 300 units. So we can transfer maximum 300 units to the division B of product Y. Okay, the maximum external sales are, so selling units यानी कि जो डिमांड है, हम लोग एक्सटर्नल सेल्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम. सो डिमांड X के लिए इतना डिमांड है मार्केट में, Y के लिए इतना है और Z के लिए इतना है. ओके, नेक्स्ट. Instead of receiving transfer of product from division A, division B could buy the similar product in the open market at a slightly cheaper price of rupees 45 per unit. Okay, what should be the transfer price be for each of 300 units of Y if the total labor hours available in division A are 3800 hours and 5600 hours. Okay, so basically आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है. सी ऑप्टिमम मिक्स का जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना, वही टाइप का क्वेश्चन है. मतलब लिमिटिंग फैक्टर रहता है, डायरेक्ट लेबर लिमिटिंग फैक्टर होता है या फिर मशीन आर लिमिटिंग फैक्टर होता है. सो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर या फिर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उसका रैंकिंग करते हैं. वो टाइप का यानी कि ऑप्टिमम के टाइप का ये क्वेश्चन है. ओके, सो बेसिकली इधर क्या बोला है, इधर बोला है कि ये जो डिवीजन बी है, अगर उसने ये वाई प्रोडक्ट डिवीजन ए से नहीं लिया तो मार्केट में से वो 45 पर यूनिट से ले सकता है. ओके, अभी हम लोग को क्या कोट करना है, हम लोग को ट्रांसफ़र प्राइस बताना है कि अगर हमारे पास लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स इतना रहेगा तो क्या रहेगा ट्रांसफ़र प्राइस, और इतना रहेगा तो क्या रहेगा ट्रांसफ़र प्राइस. ओके, सो हियर they have told that division B can buy that product, that is product Y, from the market at 45 per unit, but we have to quote the transfer price, that is if our total hours labor hours are 3800 hours and 5600 hours. Okay, so this is the question of optimum mix, so we have to calculate the contribution per labor hour because labor hour is a limiting factor. So contribution per labor hour, after that we will do the ranking and accordingly we will produce the goods. Okay, produce the product, that is X, Y and Z. Okay, so question number 50, computation of contribution per labor hour because limiting factor is labor hour. Okay, first of all हम लोग जैसे contribution find out करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो contribution आ जाता है सी. selling price, external market price is the selling price, so selling price is given and variable cost is given, just we have to copy and we have to find out the contribution. So selling price of X, it is 48, that is rupees 48.
y it is rupees 46 and z it is rupees 40. Okay, variable cost is 33. Okay, this is the variable cost we have to minus, so that's why minus. Next is 24, next is 28. Okay, so simply we have to find out the contribution. 48 minus 33, it comes to 15 rupees 15 per unit. Each and everything is per unit here. Next 46 minus 24, it comes to 22 per unit. 40 minus 28, it comes to 12 per unit. Okay, next is labor hours. Okay, अभी हम लोग को कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर फाइंड आउट करना है, सो डिवाइड बाय लेबर आर करना पड़ेगा. ओके, सी लेबर आर रिक्वायर्ड पर यूनिट इन डिवीजन ए. सो पर यूनिट का कितना लेबर आर लगता है उससे हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे. ये सब कुछ हम लोग ने इंटर में किया हुआ है. सो कंट्रीब्यूशन इज दिस मच डिवाइड बाय लेबर आर्स. सो लेबर आर फॉर एक्स इट इज़ 3 hours. हियर it is 4 in case of y and here it is 2 in case of z. Okay, simply we have to divide. So 15 divided by 3, it comes to 5. Okay, rupees 5 per unit, sorry rupees 5 per labor hour. Okay, ये जो कंट्रीब्यूशन है वो पर यूनिट है, उसको हम लोग ने आर से डिवाइड किया, तो अभी क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर आ गया. ओके, दिस इज पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट. ओके, वी आर डिवाइडिंग बाय आर, सो वी विल गेट कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर. ओके, सो 22 डिवाइड बाय 4, इट कम्स टू 5.5 एंड हियर 12 डिवाइड बाय 2, इट कम्स टू 6 रुपीज़ 6. ओके, दिस इज कंट्रीब्यूशन. सो ये हम लोग का इनकम ही हो गया ना कंट्रीब्यूशन. सो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा उतना बेटर है. सो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रैंकिंग करेंगे. मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज दिस जेड का. सो फर्स्ट रैंक, हियर इट इज़ सेकेंड रैंक, हियर इट इज़ थर्ड रैंक. ओके, ठीक है, रैंकिंग भी हो गया. अभी क्या है ना, अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्शन एज पर रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब फर्स्ट रैंक तो जेड का है, सो मैक्सिमम प्रोडक्शन हम लोग जेड का करेंगे, उसके बाद हम लोग वाई का करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्स का करेंगे. ओके, सो वी हैव टू डिसाइड द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रैंक्स. सो फर्स्ट रैंक इज ऑफ जेड. ओके, सो वी विल प्रोड्यूस मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ जेड. सी maximum demand for Z it is 300 units, right? 300 units. So 300 units we have to produce multiplied by time यानी कि labor hours required per unit of Z. मतलब एक यूनिट अगर Z का प्रिपेयर करना है, प्रोड्यूस करना है, तो 2 hours लगेगा. हम लोग को तो 300 यूनिट्स करना है. So 300 units multiplied by 2, it comes to 600 hours. Okay, so 600 hours, 600 hours available hours, available labor hours 600 hours. कैसे किया, 300 units multiplied by 2 hours. Okay, next is of y. so y में हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छे से देखो. मार्केट में रिक्वायरमेंट है 500 यूनिट्स का, और अगर हम लोग को ट्रांसफ़र करना है 300 यूनिट्स इन डिवीजन बी, तो वो रिक्वायरमेंट अलग है. ओके, सो देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट वाई, दैट इज़ मार्केट डिमांड इज़ 500 एंड ट्रांसफ़र टू द डिवीजन बी, दैट इज़ 300 यूनिट्स. ओके, दिस इज़ 500, दिस इज़ 300. ओके, सो वी हैव टू कंसिडर इट डिफरेंटली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 500 मल्टीप्लाइड बाय कितना आवर्स लगता है y को प्रोड्यूस करने में, 4. सो 500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 4. एक यूनिट बनाने के लिए 4 आवर्स, तो 500 के लिए कितना, सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 4, इट कम्स टू 2000 आवर्स. ओके, सो 2000 आवर्स. नेक्स्ट, अभी हम लोग को 300 यूनिट्स ट्रांसफ़र करना है, सो 300 मल्टीप्लाइड बाय उसको भी 4 घंटा लगेगा, सो 1200. सो 1200 आवर्स. ओके, अभी हमारे पास फर्स्ट जो अल्टरनेटिव दिया है उसमें कितना आवर्स बोला है, डायरेक्ट जो टोटल लेबर आवर्स है वो 3800. ओके, सो अभी हम लोग चेक करेंगे. सी, वी आर हैविंग 3800 आवर्स इन फर्स्ट अल्टरनेटिव, दैट इज ए. फ्रॉम दैट वी हैव यूज 600 आवर्स फॉर प्रोडक्ट Z and 2000 for normal demand of Y and remaining 1200 in transfer units of
प्रोडक्ट वाई. ओके, सो टोटल 3800 आवर्स थे, उसमें से 600 माइनस कर लो. ओके, सी 3800 आवर्स थे, उसमें से 600 इधर यूज हो गया, बचा कितना 3200. उसमें से 2000 इधर गया, अगेन 1200 गया, सो ज़ीरो. इसका मतलब x के लिए हमारे पास कुछ भी आवर्स नहीं है. ओके, x के लिए कुछ भी आवर्स नहीं है. ओके, x के लिए कुछ भी आवर्स नहीं है. अभी हम लोग इधर फाइंड आउट करेंगे कि यूनिट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द अवेलेबल लेबर आवर्स. हम लोग कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे अवेलेबल लेबर आवर्स से. अभी इधर क्या है 600 आवर्स, बराबर. हम लोग ने कितना इधर कंसिडर किया यूनिट्स, 300 यूनिट्स. ओके, 300 यूनिट्स. इधर 2000 आवर्स. सी, हम लोग ने ये पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल किया. दिस 500 यूनिट्स एंड दिस 300 यूनिट्स. ओके, सो हियर 500 यूनिट्स and 300 units. We are writing it separately because we have to transfer these units. Okay, हम लोग को ट्रांसफ़र करना है, इसलिए हम लोग सेपरेट लिख रहे हैं. अभी इधर कुछ भी आवर्स बचा ही नहीं था, तो इसका हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. ओके, सो दैट्स वाई इसका डैश आएगा. इसका कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, डैश आएगा. ओके, क्योंकि आवर्स ही नहीं है उसके पास. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफ़र प्राइस. ओके, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफ़र प्राइस व्हेन टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल दैट इज़ 3800 आवर्स. ओके, अभी ट्रांसफ़र प्राइस करते वक्त हम लोग को क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करना ही पड़ता है. ओके, सो हम लोग क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाई. सो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई इज़ 24 पर यूनिट. सो ₹24 पर यूनिट. ओके, आफ्टर दैट लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स पर यूनिट. ओके, जो प्रोडक्ट एक्स है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस हो गया है, तो वो भी हम लोग को इधर कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, सी, अगर हमारे पास ये जो ट्रांसफ़र वाला ये जब पार्ट नहीं होता तो क्या होता, ये जो 1200 आवर्स जो बाकी थे वो हम लोग किसको देते, एक्स को देते. राइट, 1200 आवर्स हम लोग एक्स को देते, और इधर एक्स को एक यूनिट को बनाने में कितना आवर लगता है, 3 आवर्स, बराबर. ओके, सो मैं इधर आपको करके दिखाती हूँ. सी, एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए हम लोग को 3 आवर्स लगता है, और इधर अगर ये ट्रांसफ़र वाला पार्ट नहीं होता तो हमारे पास कितना आवर्स रहता, हमारे पास 1200 आवर्स. राइट, तो हम लोग कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाते एक्स का. सी, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3. आवर्स के नीचे आवर्स ही रहना चाहिए, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स. ओके, सो 400. तो हम लोग का 400 यूनिट्स हम लोग नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ये जो ट्रांसफ़र है उसकी वजह से. ओके, हियर वी आर ट्रांसफरिंग दिस 300 यूनिट्स विच इज़ टेकिंग 1200 आवर्स, but if this transfer will not be there, in that case we can use this 1200 hours here. Okay, so to produce 1 unit of product X we require 3 hours, and if we are having 1200 hours then we can produce 400 units. So here we are not getting the contribution of this 400 units, so we have to recover this contribution from transfer price. Okay, because of this transfer only we are not getting that contribution, that's why we are recovering. Okay, so here we are calculating lost contribution. Okay, so 400 units are there, right, multiplied by contribution per unit x का, क्योंकि x का ही contribution नहीं मिल रहा है, so that is 15, right, this much, divide by ट्रांसफ़र वाले यूनिट्स कितने हैं हमारे 300, तो उसको ही चार्ज करना पड़ेगा, सो डिवाइड बाय 300, इट कम्स टू 20. ओके, लाइक दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सी, वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस 400 यूनिट्स ड्यू टू दिस ट्रांसफर, सो 400 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वी हैव रिटन, सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स दैट इज 15 पर यूनिट, सो मल्टीप्लाइड बाय ₹50. ओके, डिवाइड बाय ये किसको हम लोग चार्ज करेंगे, ट्रांसफ़र वाले यूनिट्स को, इसके लिए डिवाइड बाय 300 यूनिट्स. ओके, एक बार चेक करते हैं. सी, 400 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 300, इट कम्स टू ₹20. इट कम्स टू ₹20 पर यूनिट. ओके, बिकॉज वी हैव डिवाइड बाय यूनिट, सो दैट्स वाई पर यूनिट. सो टोटल ट्रांसफर प्राइस इज 24 + 20, इट कम्स टू 44. ओके, 24 हाँ प्लस 20, इट कम्स टू 44. ओके, सो फर्स्ट अल्टरनेटिव का जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो 44 आ गया है.
ओके। अभी ये जो प्रोडक्ट वाई है वो डिवीज़न बी मार्केट से भी खरीद सकता है, लेकिन 45 पर यूनिट, वो तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा 1 रुपये से। सो बेटर है कि हम लोग ट्रांसफ़र करें और वो ट्रांसफ़र प्राइस पे ही ले लें। ओके। सो अभी ये जो हम लोग ने 3800 आवर्स का किया, वैसे ही हम लोग 5600 आवर्स का कर लेंगे। ओके। सो अभी 5600 का हम लोग डायरेक्टली इधर से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रैंकिंग वाला पार्ट है वो तो सेम ही रहेगा। ओके, बिकॉज सेल विल बी सेम, वेरिएबल कॉस्ट विल बी सेम, contribution will be same, this hours will be same, and contribution per labor hour will be same, and due to that this ranking will also be same. So don't do again this, we have to go directly from this part. Okay, see, production as per ranking of products. Okay, we know that rank first is of Z and then Y and then X. Okay, so available labor hours. Okay, available labor hours, now we are having 5600 hours. Okay, so here again that part, see, maximum demand of Z is 300 units and we require 2 hours per unit. So 300 units multiplied by 2, it comes to 600 hours. So available labor hours 600 hours. सेम पहले केस में किया वैसे ही 300 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 आवर्स। लाइक दैट हम लोग y का फाइंड आउट करेंगे। y का जो मार्केट डिमांड है वो 500 यूनिट्स है और जो ट्रांसफ़र का है वो 300 यूनिट्स है, और y का जो प्रोडक्शन के लिए मतलब 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 4 आवर्स लगता है। सिंपली मल्टीप्लाई करना है। सो 500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 आवर्स, दैट इज़ 2000 hours. Here 300 units multiplied by 4, it comes to 1200 hours. Okay, now we will check how much hours we are getting now after using here. So 5600 hours total. Okay, from that we have used for both of this 5600 minus z के लिए 600 minus y के लिए ये 2000 और 1200. ओके, इट कम्स टू 1800. ओके, सो ये जो बैलेंस है वो मिनिमम रैंक वाले को मिलता है। सो इधर 1800 आवर्स हम लोग को इसको हम लोग दे पा रहे हैं। ओके, ठीक है। अभी हम लोग यूनिट्स प्रोड्यूस फ्रॉम अवेलेबल लेबर आवर्स फाइंड आउट करेंगे। इधर तो सिंपल है, जो भी हम लोग का डिमांड है उतना यूनिट्स, 300 यूनिट्स। सी, in case of Y, 500 units of normal market demand and 300 units of transfer. Okay, now in case of X we have to calculate like we have calculated earlier. Okay, इधर ही करते हैं हम लोग। X के लिए एक यूनिट प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को 3 आवर्स चाहिए, राइट। एक यूनिट बनाने के लिए 3 आवर्स चाहिए। हमारे पास कितने आवर्स है? हमारे पास है 1800 आवर्स। ओके, सो हम लोग कितने यूनिट्स बना सकते हैं? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई 1800 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3, इट कम्स टू 600. 600 यूनिट्स वी कैन प्रोड्यूस. ओके, वी कैन प्रोड्यूस. सो 600 units we can produce. Okay, now computation of transfer price when total labor hours available 5600. Okay, so variable cost per unit, अभी हम लोग y ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो y का जो वेरिएबल कॉस्ट रहेगा वो दैट इज़ 24, जैसे लास्ट टाइम किया वैसे ही 24 पर यूनिट। लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट x पर यूनिट। ओके, अभी लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। सी, प्रोडक्ट x का लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, so here we can produce 600 units of X and here see maximum demand of X is 800 units, right। 800 units का टोटल डिमांड है X का, राइट। उसमें से हम लोग इधर कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? ओनली 600। तो हम लोग का कितना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? दैट इज़ 200। ओके, क्योंकि हम लोग ने जो एक्स्ट्रा आवर्स थे वो इधर ट्रांसफ़र किए, राइट। सो हम लोग का कितना यूनिट्स का लॉस हो रहा है? सी, 800 यूनिट्स का मार्केट डिमांड है, उसमें से 600 यूनिट्स तो हम लोग कवर कर पा रहे हैं, तो बचा कितना? 200 यूनिट्स। ओके, 200 यूनिट्स, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट का वो कितना है? 15 है। सो 200 यूनिट्स के ऊपर
₹15 के हिसाब से हम लोग का लॉस हो रहा है, डिवाइड बाय ये लॉस हम लोग ये जो ट्रांसफ़र वाले यूनिट्स है उसको चार्ज करेंगे, सो दैट्स वाई डिवाइड बाय 300 यूनिट्स. ओके, सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 300. ओके, क्योंकि हम लोग का 200 के ऊपर जो 200 यूनिट्स है उसका कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, सो वो जो टोटल अमाउंट आएगा उसको डिवाइड बाय 300 करेंगे तो 10 आ जाएगा. सो ₹10, 24 प्लस 10 इट कम्स टू ₹34. ओके, 24 प्लस 10 इट कम्स टू ₹34. ओके, ये जो बुक का आंसर है उसमें उन लोग ने ये जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्टली आवर्स का कंट्रीब्यूशन लेके किया हुआ है. हम लोग ने अगर यूनिट्स का लेके किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको जो अच्छा लगेगा वो आप लोग कर सकते हो, जो आपको बेटर पड़ेगा वो आप लोग कर सकते हो. ओके, so here we have completed illustration number 50. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.